Good evening, everyone. So today we are going to explore a very short case and a very nice case of a very common remedy. We often use it. So this is a case of a 17 years boy. He came to me in 25th August 2014. So he came to me for the complaint of sleeplessness and tiredness for the 6-7 month he was suffering from, and he was looking very cool, had a very mild smile on his face and gave an impression of a very gentle boy. He was looking very gentle. इतना सोबर, इतना अच्छा लग रहा था कि लगता है इतना सीधा बच्चा, इतना बढ़िया बच्चा आज के जमाने में मिलता नहीं है. Usually get such type of boy very rare nowadays. So I asked him, what happened 6 to 7 months ago? After that, you developed sleeplessness. The patient said 6-7 months ago, I had food poisoning. And after that, this problem started. Then I asked, you have said you have a tired feeling. What do you mean by that? So he said, I feel very lazy. I work very slowly, not getting energy as I had before. Earlier, I was very energetic in doing everything. But now I used to try to avoid the work I don't like. I feel like doing it later on. All the time I want to sleep on the bed. I does not want to get up, does not want to work. And it is the main problem. So I asked, do you have any anxiety due to this problem? No, not that much. But obviously I'm worried about studying. My study. If I do not study properly, I will not get the admission in the best college. And therefore, I will not get the job I want. So it can spoil my future. So what do you want to do after the study, in your life, in career? Whatever career you want to choose? He replied, I want to become a businessman. Then how is your temperament? He said, I am very cool, doctor. I am very cool. I was always mild, always smiling. I never get angry. Whatever happened, I never get angry. Whatever mommy gives me to eat, I eat without any attitude. And her mom confirmed. ये बच्चा कुछ भी दे दो खा लेता है, कभी कोई नखरे नहीं करता, सारी बात मानता है. So this is the case. So I gave a single dose of the medicine on 25th August. And reported on 16th September, I am not feeling so much better. So I repeated the same medicine again, even not change the potency also. And after that, he came to me on 26th December 2018, when he suffered from a headache. Then I came to know that he was completely all right in the meantime. And that headache was also cured by the same medicine given in 200 potency. So this is the case. I hope you all have understood the case properly. So please, whoever is ready, please give the analysis.
So anyone? ब्रायनिया का फील आ रहा है। ब्रायनिया का फील आ रहा है, क्यों आ रहा है? वाई? एंजाइटी बिजनेस अबाउट बिजनेस की इसको बहुत चिंता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जी और क्या है? सर आप केस हिंदी में बताइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। केस को एक बार रिपीट करें हिंदी में। वैसे सब लिखा तो है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। एक बार आप बता दीजिए। ठीक है, मैं बोल देता हूँ एक बार फिर से हिंदी में ही बोल देता हूँ। ये जो केस है ना, ये 17 साल के बच्चे का केस है जिसको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम हो रखी है, और ये भी करीब चल रहा है 6-7 महीने से चल रहा है। ठीक है, और इसके साथ में उसको बहुत ज्यादा टायर्ड फीलिंग हो रही है, ऑलवेज फीलिंग टायर्ड, हमेशा थका थका सा महसूस करता है, जैसे शरीर एकदम टूट रहा हो, उठने का मन नहीं करता है, बिछौने पे पड़े रहता है ना। दिस इज द प्रॉब्लम। तो वो जो बच्चा है ना, वो बहुत शांत दिमाग का लग रहा था, बहुत अच्छी स्माइल थी चेहरे पर, और बहुत सीधा बैठा था, एकदम सीधा साधा अच्छा बच्चा लग रहा था। तो मैंने पूछा कि 6-7 महीने पहले क्या हुआ था, तो उसने बताया कि फूड पॉइजनिंग हुआ था और उसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो मैंने पूछा कि आप जो फील कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर, उसका मतलब क्या है? तो मुझे बहुत लेजी लग रहा है, आलसीपन बहुत ज्यादा लग रहा है, काम बहुत धीरे धीरे करता हूं, करने की एनर्जी ही नहीं है, जबकि पहले मैं बहुत ज्यादा काम करता था, मेरे में काफी फुर्ती थी, काफी एनर्जी थी। अभी तो लगता है कि छोड़ दो यार, बाद में कर लेंगे, रहने दो, बस सारे दिन पड़े रहने का मन करता है। तो मैंने बोला कि पूछा कि अच्छा, आपको इस प्रॉब्लम को लेकर कोई टेंशन होता है, कोई चिंता होती है? नहीं, उतनी टेंशन तो नहीं होती, लेकिन हाँ, पढ़ाई को लेकर मैं बहुत ज्यादा चिंतित रहता हूँ, क्योंकि मैं यदि पढ़ाई नहीं करूं, मैंने पूछा कि क्यों चिंतित रहते हो, तो लगा यदि पढ़ाई प्रॉपरली नहीं होगा तो मुझे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मैंने पूछा बेस्ट कॉलेज में एडमिशन मिलने से क्या हो जाएगा, कि वहां यदि बेस्ट कॉलेज में मिलने से अच्छी जॉब मिलती है, मैं जिस तरह का जॉब चाहता हूं, अच्छा जॉब मिल जाएगा मुझे। यदि नहीं पढ़ाई किया, अच्छी जगह नहीं एडमिशन हुआ, तो मेरा तो पूरा लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाएगा। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है, आप पढ़ाई करके बनना क्या चाहते हो? तो फिर उसने बोला कि मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। तो एक और जॉब की बात भी कर रहा है, दूसरी ओर बिजनेसमैन बनने की, उसका अपना ख्वाब है बिजनेसमैन बनने का, नहीं बन सका तो जॉब तो है। तो मैंने पूछा कि अच्छा, आपका नेचर कैसा है, गुस्सा ज्यादा आता है या ठंडे दिमाग का? मैं बहुत ठंडा दिमाग का हूं, मैं कभी भी गुस्सा नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। जो भी मम्मी बोलती है बेटा ये खा लो, मैं खा लेता हूं, मैं कभी भी कोई नखरे नहीं करता। तो मम्मी ने बोला कि हाँ, ये कोई नखरे नहीं करता, जो भी डाल दो ये खा ले, रूखा सूखा हो, अच्छा हो, जैसा भी हो, कभी भी कोई किंतु परंतु नहीं करता, वो खा लेता है। तो बस इतना सा केस है। तो इसको मैंने 30 पोटेंसी की सिंगल डोज दिया पहले। हफ्ते भर के बाद जब वो आया तो बोला कि बहुत ज्यादा कुछ आराम नहीं मिला, मैं सेम मेडिसिन रिपीट कर दी। उसके बाद वो सीधे 26/12 को आया उसके हेडेक के लिए, जब सर में दर्द हो रहा था, उसको भी 200 पावर से ठीक हो गया था। इन द मीन टाइम वो बिल्कुल ठीक था। बस इतना सा केस है, बहुत छोटा सा केस है। प्लस में आ रहा है, रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड एक्सेप्ट कर रहा है, जैसा जो उसे मिल जाता है वो खा लेता है। अब वैसे तो बिरानिया ही आ रहा है, बिरानिया फर्स्ट फिर एंजाइटी फ्यूचर अबाउट भी है, एंजाइटी बिजनेस अबाउट है, उसको डिल्यूजन पुअर ही। अच्छा जी, पहले तो बिरानिया ही है, नहीं तो फिर काकुलस है। नहीं तो कॉकुलस है। तो इसमें रिकॉग्नाइज करने वाली क्या बात है? सीधा साधा है, हर चीज को मान जाता है जल्दी से, अच्छा, जैसा अच्छा, जो मिल अच्छा, जाता है उसको खा लेता है, ठीक है। हर बात को मानता है। हाँ, यील्डिंग डिस्पोजिशन का है कहने का मतलब आपका, शायद जी जी, कि हर चीज को मान लेता है, ठीक है, या ओबेडिएंट है। ओबीडियंट। ओबेडिएंट वाली तो बात तो नहीं है, हाँ, जो दिया नखरा नहीं करता, एटीट्यूड नहीं है, ईगो नहीं है इसके अंदर, जी सर। ठीक है, अल्टीमेट ईगोटिज्म वाली नहीं है,
ठीक है, अच्छा बताया आपने, वेरी नाइस। हाय और सर। सर हाँ, मैंने कुछ रूब्रिक्स लिए हैं। मेरा हाँ, एक तो फर्स्ट नंबर पे काली सल्फ है, सेकंड पर है हम्म, फाल्कोपी। फॉल कॉपी, वेरी नाइस। अब हाँ क्या जी। रूब्रिक लिया, रूब्रिक बताइए आप। सर फर्स्ट रूब्रिक तो है एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। हम्म, सेकंड है कंटेंट, कंटेंट हिमसेल्फ विद, अपने आप से कंटेंट है हर मोमेंट में। बहुत अच्छे रूब्रिक है, बहुत अच्छे रूब्रिक है आपके। जी। थर्ड सर लेजीनेस। फोर्थ रूब्रिक है माइल्डनेस। फिफ्थ रूब्रिक है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। फिफ्थ लिया मैंने रेस्ट। जी। फिफ्थ रूब्रिक लिया आपने, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, यस, ठीक है। तो सर जो लास्ट रूब्रिक है, एक हम्म, सेकंड लास्ट है रेस्ट डिजायर फॉर, और लास्ट है स्लीपलेसनेस। जनरल रूब्रिक ले लिया मैंने स्लीप हम्म, चैप्टर में, सॉरी। सर उसमें फर्स्ट नंबर पर तो काली सल्फ आ रही है, सेकंड पे क्रिटिका वल्गैरिस, और थर्ड पे हम्म, फाल्को भी है। तो बहुत मेरे बढ़िया को, आप, हाँ बहुत जी। अच्छा है। सर क्रिटिका वल्गैरिस भी बहुत माइल्ड होता है ना, माइल्ड पर्सनैलिटी, लेकिन उसको क्या Yes, प्रॉब्लम है उसको, हाँ जी, उसको रिस्पेक्ट चाहिए। तो जरूरी तो है नहीं कि रिस्पेक्ट उसको हर टाइम चाहिए चाहिए। फर्स्ट में काली सल्फ है मेरा, दूसरे में मेरा फाल्को भी है। थैंक यू सर। वेरी नाइस, ठीक, अच्छा बोला आपने। नमस्ते सर। सर हाँ, नमस्ते। हाँ, बाकी रूब्रिक्स तो सर मेरे भी माइल्डनेस है, काफी माइल्ड बच्चा है। लेकिन हम्म, बता रहा है कि लेजीनेस बहुत है आजकल, कुछ काम नहीं करता हम्म, हूँ। होता है कि बेड यस, पे ही लेटा हूँ। तो मैंने बेड यस, रिमेन इन बेड डिजायर भी लिया हुआ है। बाकी हम्म, जब आपने पूछा कि ये हम्म, क्या है पढ़ाई वाला, ये कैसा है, आप क्यों चाहते हो ऐसा, तो उसने कहा कि आगे मैं अगर ये नहीं हम्म, करूंगा तो मुझे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आगे मैं अपने मन का नहीं कर हम्म, पाऊंगा। तो ये बात उसकी मुझे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल लगी, तो ये ऑब्जेक्टिव हम्म, रीजनेबल लिया। बाकी कंटेंट है, कुछ उसको ज्यादा अंतर नहीं है, जो मिल जाता है खा लेता है, उसमें कोई कुछ करता हम्म, नहीं है। और बाकी मुझे ये भी लगा कि पोस्टपोनिंग एवरीथिंग, इस बीच में उसका ऐसा हो गया है कि वो हर चीज को, हम्म, आज की चीज को कल पर टाल देता है, तो पोस्टपोनिंग एवरीथिंग। तो हम्म, ये 5-6 रूब्रिक्स ले करके सर मेरा तो हम्म, फेल्कॉन पी ही नंबर 1 पे आ रहा है। हम्म, बहुत अच्छा लिया आपने। तो फैल्कॉन पी में जज्बा भी होता है ना, बहुत फाइट करता है आगे बढ़ने के लिए, तो अच्छी चॉइस है फैल्कॉन पी। सर मेरा भी फाल्कन पे सेकंड नंबर पर है। ठीक, हाँ जी। बहुत बढ़िया। और नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सर मुझे ना यहाँ थोड़ा तो रूब्रिक के हिसाब से सर वो नक्श वामिका भी आ रही है ऊपर, हम्म, लेकिन सर सेकंड में वो साइलिसिया है सर, और काली फास हम्म, सर। क्या मैंने रूब्रिक लिया आपने। रूब्रिक में दिया है सर, वो माइल्डनेस तो लग रही थी, वो जो भी हम्म, दिया जाता है वैसे खा लेता है, और हम्म, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे, वो हर काम को हम्म, टालता रहता है सर, और हम्म, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट है, और सर हम्म, एम्बिशन इंक्रीज लग रहा था वो, जो कह रहा था अच्छे हम्म, कॉलेज में एडमिशन लेना है, हम्म, और लेजीनेस लग रही थी सर। तो ये हम्म, लेके सर नक्श वामिका भी आ रही है, साइलिसिया और हम्म, कालीफास। नक्सवामिका, सिलिशिया, कालीफॉस, बहुत अच्छा सोचा आपने। इन जी तीनों जी। में क्या डिफरेंस है, इस केस में कैसे आप डिफर करेंगे। सर नक्श वामिका तो नहीं है वो, हम्म, क्योंकि जैसा माइल्डनेस है तो वो वाला तो नहीं लग रहा है, नक्श वामिका भी नहीं लग रहा है। और हम्म, अगर साइलिसिया में जाएंगे तो साइलिसिया पे भी सर वो ईगोटिज्म में रहता है, ऑब्स्टिनेट भी रहता है, वो भी नहीं लग रहा है। हम्म। तो सर, लेकिन इमेज कॉन्शियस होता है ना, सिलिशिया तो बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होता है। हाँ इमेज कॉन्शियस होता है, जी जी। इनका भी बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होता है, मोस्ट प्रॉब्ली। हम्म, हम्म, गुड इवनिंग सर। जी हाँ, जी, नहीं, थैंक यू बहुत अच्छा सर। होता है। हाँ, जी जी, ठीक है। थैंक यू सर। हेलो। हाँ, हेलो, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं बताइए। सर इसने जो हिस्ट्री दिया है कि इसको फूड पॉइजनिंग के बाद ये सब तकलीफ चालू हुई है, तो मैंने हम्म, यहाँ कंसिडर किया डेल्यूजन पॉइजन मेडिसिन बिंग पॉइजन, यानी जो खाना अपने को एनर्जी देता है ये इसको हम्म, पॉइजन कर दिया। और डेल्यूजन इंजर्ड बिंग इंजर्ड, कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, बेड रिमेन इन बेड डिजायर,
तो मुझे हायोस का फील आया सर यहाँ पे, हायोस और टीडीएमए कार्सिनोसिस। ठीक। हाँ, उसने बताया कि फूड, लेकिन एक बात और पूछ, जैसे उसने फूड पॉइजनिंग हुआ है ना, तो मान लो आप कहीं गए और आपको लगा कि फूड पॉइजनिंग हो गई, तो अब क्या ये डेल्यूजन है या रियलिटी है? इसमें मॉर्बिडिटी है क्या? क्योंकि मान लो जैसे मुझे किसी ने एक घुसा मारा, उसके बाद से मेरा जबड़ा दर्द कर रहा है, तो मैं तो बोलूंगा भाई घुसा खाने के बाद से ये स्वेलिंग हो गई या फूल गया। ये रियलिटी है। रियलिटी है ना। अब इसके बाद में इसको लेके क्या उसके लिए फील करता हूँ, मेरा उसका रिएक्शन क्या रहा, या जाने दो, छोड़ दो, क्या करें, मार दिया तो मार दिया, या मुझे तो बहुत गुस्सा आया जी, मेरा तो मन किया कि मैं भी फोड़ दूं उसको, और मार दिया बोल के मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है ना, ऐसे नहीं मारना चाहिए था, उसके कारण से मुझे भुगतना पड़ा, तो रॉन्ग सफर में जा सकता है ना। तो तरह तरह के उसके बाद का अडेप्टेशन, रिएक्शंस क्या आता है, उसके हिसाब से, बट दिस इज द रियलिटी। हाँ, यदि उसे बोलता है कि दवाई लेने से हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि उस बंदे को उस दवा के बारे में पता है या उसने मन से एक अंदाजा लगा के बोल रहा है। यदि अंदाज लगा के बोल रहा है तो ये डेल्यूजन हो सकता है, यदि रियलिटी उसको पता है तो बताएगा ही। तो फूड पॉइजनिंग हुआ था तो इसने इलाज कराया था, डॉक्टर ने बताया आपको फूड पॉइजनिंग हुई है, तो ये उसके मन की कहानी नहीं है, ये रियल में हुआ है, समझ गए ना। तो ये डेल्यूजन पॉइजन को हटा के आप सोचिए, फिर आपकी रेमेडी बहुत सही आएगी। ओके। पॉइजन तो नहीं, लेकिन ड्रिवन इंजुरी, बीइंग इंजर्ड, ये जरूर एक बार मन में आया था। ये जरूर हम सोच सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सोचा आपने। ये मन में आया था, पॉइजन वाला तो नहीं फील आया था, क्योंकि Yes. पॉइजन वाली चीज अलग हो गई, लेकिन इंजरी बीइंग इंजर्ड क्यों, उसके बाद से उसने कहा कि इसके बाद से ही मुझे ये दिक्कत होने लगी है, नींद नहीं आ रही है। वो हाँ, लेकिन ये हम हालांकि ले उसने सकते हैं। एक ही बार कहा था, तो मुझे लगा कि शायद ये हो सकता है इतना इम्पोर्टेंट ना भी हो, तो इसलिए मैंने उसे कंसीडर नहीं किया था, बट ये लग रहा है कि शायद ये हो सकता है, maybe। हाँ ना, ठीक है, ये बात थोड़ी जच रही है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग क्लियर करते करते भी चलेंगे एक एक रूब्रिक को, जहां मुझे लगेगा कि थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। तो तुषार जी, आप थोड़ा सा एक बार और वर्कआउट करके बताइए, आपके रूब्रिक्स, बाकी रूब्रिक आपके बहुत अच्छे थे। यस सर, यस। और कोई? डॉक्टर शहनाज, आप बताएंगी आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर शहनाज, डॉक्टर गिरीश। तभी बताया था। अच्छा, आपने बताया ना। आपकी आवाज बहुत प्यारी है डॉक्टर गिरीश, बहुत अच्छी आवाज है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप गाते वाते हैं? और जो कोई आपने बताएंगे? बोला सर, आपने जो बोला ना आवाज प्यारी है, जब ये सर बोलते हैं मेरे को भी फीलिंग आती है कि पाकिस्तानी गजलिस्ट है मेहदी हसन साहब, मेरे को ना थोड़ी सी उनकी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है जब ये बोलते हैं। बहुत अच्छा। हाँ, उनकी आवाज बहुत डेप्थ वाली है। बिल्कुल। आपने लीजेंडरी मैन का नाम ले लिया है, मैं तो उनके कहीं आसपास भी नहीं हूँ। डॉक्टर कविता, आपको क्या लग रहा है? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मुझे ये पर्सन कंटेंटेड लग रहा है, माइल्डनेस है उसमें, और थोड़ा थोड़ा एम्बिशन भी है, और उसको अच्छे कॉलेज में और अच्छे स्टडीज करनी है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो मे बी फियर ऑफ पॉवर्टी का रहेगा कि उसको आगे जाके ऐसे लाइफ नहीं जीनी है पॉवर्टी में, वो है। और लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, तो इससे मेरा कालीसल और स्पॉन्जिया आ रहा है। कालीसल, लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, बहुत अच्छा रूप यस दिया आपने। यस सर। अब इसमें दो बातें होंगी, या तो आप मेरी मुश्किल आसान करेंगे या मेरे को और ज्यादा फंसा देंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपके रूब्रिक्स, बेसिकली लेजीनेस, पोस्टपोनिंग द वर्क, वेरी नाइस रूब्रिक।
उसको हम DD करेंगे, ठीक है। और इसमें से कौन कौन है जिन्होंने कभी भी बोला नहीं है? कभी ऐसे कोई है? डॉक्टर सुरेंद्र पांडे, आपको क्या लग रहा है? जो भी आता है बोले, उससे हम लोगों को सीखने को मिलता है कि कई बार आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं जो मेरे नजर में नहीं आता। जैसे अभी लेजीनेस पोस्टपोनिंग वक्त मैंने अभी नहीं देखा था, मेरे दिमाग नहीं आया था, एक रूब्रिक आई तो हम लोग सोचते हैं ना, तो कुछ ना कुछ सभी नया देते हैं, सभी अपना कंट्रीब्यूट करते हैं जब हम लोग इंटरेक्शन करते हैं। तो पर इसमें पोस्टपोनिंग एवरीथिंग डेलूजन पॉइजन्ड ही हैज बीन, अभी आपने बताया कि पॉइजन को मत लीजिए, हाँ, मत लीजिए, लेकिन हमने लिया था। बिल्कुल सही है। तो वो कह रहा है कि वो मैंने खाया उस दिन का खाना और उसके बाद से ऐसा हुआ। यस। तो यहाँ से पॉइजन की तरफ आपकी आवाज कट रही है। हाँ, तो आपका हाँ बोलिए अभी। वहां से पॉइजन की तरफ बायस्ड हुए। तो इसमें ठीक है, जो है आ रही है जलसीमियम है, लाइको है, नक्सवोमिका और सल्फर है। वेरी नाइस। ये 4 मेडिसिन आ रही हैं अभी। जैसे जो एलिमिनेटिंग पॉइंट है, जैसे नक्स है, तो जैसे आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, लगता है थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम है, नेटवर्क इश्यू है। आप एक बार लीव करके फिर ज्वाइन कीजिए, हो सकता है ठीक हो जाएगा। नक्स है तो एक बार लीव करके ज्वाइन कीजिए, आपकी आवाज कट जा रही है बार बार। जो है टेम्परामेंट कुछ और होना चाहिए। ये बहुत माइल्ड है, बहुत वैसा है। आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो इट में भी लाइक शुरुआती एज में जो है, इसमें ये थोड़ा सा टिमिड या बहुत इल्डिंग टाइप का है, तो ये लाइक को हो सकता है मेरे हिसाब से। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और कोई बताएंगे या मैं एनालिसिस दूं अपना? हेलो, और कोई? सर रेमेडी आई है, फ्लोर पर आई है रेमेडी? हाँ, फ्लोर पर आई है। मिडिल फ्लोर पर आ चुकी है। और जिन्होंने आया है उनका एनालिसिस बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा है। सर जैसे मैंने काली सल्फ बोला ना, काली सल्फ, उसमें सल्फर होने के कारण उसमें इगोटिज्म होनी चाहिए, थोड़ी इगोटिज्म। ये बंदा बहुत माइल्ड है, तो मैं काली सल्फ की जगह ट्रिटिकम और फाल्कोपी का रख रहा हूँ अभी।
ठीक है, अच्छा, हाँ जी। ठीक है। पोडोफाइलम लग रही है सर। पोडोफाइलम, हाँ बताइए। पोडोफाइलम अभी तक किसी ने नहीं बताया, पोडोफाइलम क्यों लग रही है? कंटेंट बंदा है, माइल्ड है, बेड रिमेन इन बेड डिजायर में है, पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे में है, और डलनेस है। अभी मैंने केस पढ़ी है सर, अच्छा, तो अच्छा, मुझे थोड़ा पोड़ो लगा। बहुत अच्छा, आपने पोडो बहुत अच्छा बोला। ठीक है, तो स्टैप भी लग रहा है सर थोड़ा सा, वो बिल्कुल एंग्री नहीं है ना, कुछ उल्टा भी नहीं बोलता, हाँ, ऐसे थोड़ा सा। यस, इसको देख के लग रहा है ना बहुत संतुष्ट बच्चा है, कोई डिजायर नहीं है, आराम से जो दिया खाया जो मिला। हाँ, लेकिन उसकी अपनी एम्बिशन बहुत ज्यादा है, उसको बनना है और पैसे बहुत कमाने हैं ना, बिजनेसमैन बनना है। सर लग तो रहा है उसका कॉकुलस जैसा, लेकिन कॉकुलस डल माइंडेड होता है, ये बंदा लगा नहीं डल माइंडेड, क्योंकि हाई एम्बिशन क्रेज में है। कॉकलेस का क्या है ना, उसको गुस्सा आएगा यदि कुछ गलत होगा तो, ओके। लेकिन क्या होता है कि वो इसलिए यील्ड करता है कि समझा के देखा, एक बार गुस्सा करके भी देख लिया, बता के देख लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो 2 बार 3 बार 4 बार डलनेस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ओनली आफ्टर रिपीटेशन। एक ही बात पर बार बार जब झाड़ने के बाद 8 बार 10 बार 15 बार झाड़ झूड़ के देख लिया, बंदा तो समझने वाला नहीं है। तब तब रीड कर उसको जाता है। लगता है कि यार माथा फोड़ने से फायदा नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ। तो कई बार एक ही चीज को बार बार रिपीट होने के बाद उसको समझ में आता है, तब वो रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, चुपचाप बैठ जाओ। ये कॉकुलस है। एकदम इनिशियली वो जरूर गुस्सा करता है, बिगड़ता भी है, सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार जब बोल के देखता है ये बच्चा तो मत खाया कर यार, ये पान पराग खाते हो, जर्दा खाते हो, कैंसर हो जाएगा, कल प्रॉब्लम होगी, सुनता ही नहीं है। झाड़ भी दिया, एक दिन थप्पड़ भी लगा दिया, फिर भी नहीं मानता है, तो वो छोड़ देता है कि छोड़ो यार, ये सुधरने वाला बंदा नहीं है। तो इसको थोड़ा सा काफी देर से समझ में आता है ये चीजें, है ना, बहुत देर से समझ में आया कि डॉक्टर साहब करीब 6-7 महीने से प्रॉब्लम चल रहा था, तो अब हमारा डायरिया हो रखा है। डॉक्टर साहब कल मैंने नोटिस किया या 2 दिन पहले मुझे लगा कि जब मैं ये चीज खाता हूं तब मुझको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। तो 7 महीने से खा रहा है और तेरे को 2 दिन पहले मालूम पड़ा। तो इतने रिपीटेशन होने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि उसकी ये प्रॉब्लम है, ये चीजें उसे खराब कर रही है, ये उसकी डलनेस है। तो हमेशा इन दोनों को कनेक्ट एक साथ कनेक्ट करके लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो रेमेडी फ्लोर पर वैसे आ चुकी है, तो हम लोग इसको अब समझते हैं। इस केस को, बहुत सिंपल सा केस है, बहुत ही छोटा सा केस है, इसमें समझना जरूरी है थोड़ा सा। कुछ मैंने केस बोलते समय समझा भी दिया था थोड़ा सा। तो अब इसमें देखिए सबसे बड़ी बात क्या है। इसको नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगा इस केस में कि इसको जो है ना क्या बनना है, तो उसको सबसे ज्यादा जैसे हम लोग क्या एंग्जाइटी क्या है, आपको टेंशन होती है, कोई खास नहीं, लेकिन फ्यूचर को लेकर टेंशन होती है कि सर स्टडी को लेकर टेंशन होती है कि यदि स्टडी ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, फ्यूचर खराब हो जाएगा ना उसका, क्योंकि अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, पढ़ाई नहीं करेंगे तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। तो सारी चीजें कोरिलेटेड है। ये छोटा सा बच्चा है और इसकी क्लैरिटी देखो माइंड की, कितना अच्छा सारा चीज उसका कैलकुलेटेड है, सारी चीजें पता है कि हमको यदि अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, बढ़िया करना है, इवन बिजनेसमैन भी करना है, तो MBA वगैरह भी करना है, तो हमको अच्छे नंबर पास होना जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई ही इज वर्किंग ऑन दैट कि नहीं पढ़ाई अच्छा करना है। लेकिन अभी क्या हुई है, उसी चीज का मन ही नहीं कर रहा है, इतनी ज्यादा कमजोरी लग रही है, इतनी ज्यादा लेजीनेस आ रही है, इतना ज्यादा टायर्ड फील हो रहा है। तो इसको एंजाइटी क्या चीज की थी,
एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, फ्यूचर किससे कनेक्टेड है? मनी मैटर से। बिजनेसमैन बनना है, अच्छी जॉब तो सैलरी अच्छी मिलेगी, मोटी मिलेगी, अच्छी जगह नहीं लगी तो सैलरी मोटी नहीं मिलती, सारी चीजें पैसे से कनेक्टेड है ना। तो ये जो बंदा है, ये इसको सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, प्रोडक्टिविटी चाहिए, काम में अच्छा रहना चाहिए, सोशल में सोसाइटी में अच्छा स्टेटस चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, ये चीजें इसकी नीड है। ये अपने इमेज को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहता है, जस्ट लाइक सेलिशिया। ठीक है, लेकिन उसने ऐसे केस में तो बोला नहीं है मेरे को इतना कुछ चाहिए। यही समझना है, इतना तो यही समझना है। उसने क्या बोला? उसने बहुत अच्छी वर्ड बोली, आप पढ़ो आप ठीक से। तो इसके बैकग्राउंड में क्या है भाई? आप अच्छी जॉब क्यों चाहते हो? आप बहुत अच्छे पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर सभी लगे हुए हैं, है ना, संडे के दिन भी आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्यों? कि हम लोग ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा अच्छी तरह से सीखेंगे तो क्या होगा? हम पेशेंट को ठीक कर सकेंगे। ज्यादा पेशेंट ठीक करने का मतलब क्या है? कि वी कैन इंक्रीज आवर फीस। इंक्रीज करने का मतलब क्या है? या ज्यादा पेशेंट आएंगे तो क्या होगा? हमारी इनकम बढ़ेगी ना, है या नहीं? कुछ लोग सेवा भाव से होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ 90% होंगे जिनका यही मैं जो बोल रहा हूँ शायद ऐसी ही सोच हो, पता नहीं। ईमानदारी से कितने लोग बोल सकते हैं हाँ? नहीं, आप जो कह रहे हैं वही है सर। सर आपकी सर बात बिल्कुल ठीक है, ये बात तो सही है। लेकिन कई बार क्या होता है सर, केस में कई बार बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये चीज उसने वर्बली चूंकि नहीं कही है, इसलिए हम उसको कैसे ले सकते हैं। नहीं देखिए, वो अलग बात है, ये अपनी अपनी सोच है। क्योंकि मैं बहुत कुछ इन बिटवीन द लाइंस में लेके प्रिस्क्रिप्शन करता हूँ। बहुत बार पेशेंट डायरेक्ट कुछ नहीं बोलता, हमें अलग से सोचना पड़ता है, उसके एक्शंस को देख के, उसके बोलने को देख के। कई बार बोलता कुछ है, होता कुछ है, उस कंट्राडिक्शन को भी समझना पड़ता है। तो कभी भी हम यदि उसके वर्जन को लेके चलेंगे ना तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। तो मेरा एक क्वेश्चन पता क्या है, क्योंकि अब आप लोगों से डॉक्टर साहब थोड़ा फीस कम दे दें, 100 रुपया कम देते हैं, बुरा तो नहीं लगा सर आपको? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से आपका मन तो जल गया होगा यार, इतना मेहनत किया और इसने फीस कम दे दिया। तो आपके मन की बात समझेंगे कैसे कि ये मन में क्या सोच रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ एक्शंस आपके ऐसे होंगे जिससे आप उस अंतर को समझना पड़ेगा कि वास्तव में इनको बुरा लगा है या ये बंदा ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन है, फिर हाँ, इसका बोलिए। मतलब ये बंदा कंटेंट नहीं है, फिर जो हमने कंटेंट लिया है ना उसमें वो हम ट्रैप हो गए वहां। कंटेंट कहाँ है? इसको तो चाहिए ना। हाँ वही तो है ही नहीं यहीं ना, पे हम ट्रैप हो गए बिल्कुल। इसको तो चाहिए। ये माइल्ड जरूर है क्योंकि इसका फोकस पढ़ाई पे ज्यादा है, तो इन सब चीजों से वो अलग चल रहा है। चलो इन सब फालतू चीजों को छोड़ो, ये वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि भाई मुझे इन चीजों में नहीं फंसना है, मुझे अपना फोकस अपनी स्टडी पे करना है। इज वेरी फोकस्ड, उसको पैसे कमाने हैं, बड़ा बनना है, अच्छे गाड़ी लेना है, बंगले लेना है। इसका मतलब वो कंटेंट तो किसी एंगल में नहीं लगा फिर। हाँ, उसने जॉब की बात भी की, तो जॉब की बात भी क्या की? हाई पेड जॉब, अच्छी सैलरी वाली जॉब, अच्छे जॉब। अच्छे जॉब का मतलब क्या होता है? पैसे ज्यादा मिलेंगे ना, राइट? सही या नहीं? आप लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हो, रात को कितना बज रहा है? 11 बजने जा रहा है, छुट्टी का दिन है ना? जो मेल डॉक्टर है उनकी बीवियां गालियां देती होंगी, जो फीमेल उसके पति देव गुस्सा होते होंगे, फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। बच्चे भी नाराज होंगे कि देखो पापा घुमाने नहीं ले गए, तो मम्मी यहाँ बैठी हुई है, अच्छा नहीं कुछ बना के खिला रही है। होता है ना नॉर्मली। तो क्या होता है, हम लोग क्यों इतना मेहनत करते हैं? बिकॉज वी वांट सक्सेस इन द केसेस, और ज्यादा सीखेंगे। और सक्सेस का मतलब कहीं ना कहीं हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ बिल्कुल है, उसे हम ना नहीं बोल सकते। हाँ, इसमें से जरूर 2-4 लोग होंगे, एक्सेप्शंस होते हैं, 2 से 4% एक्सेप्शंस होंगे जिनका काम है अच्छा से, जैसे महादिक सर है, इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है, बहुत डिफरेंट है। वो जिसे बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं, भगवान से जुड़े हुए जो लोग, कुछ लोग होते हैं ना, उस तरह के उनकी ये, तो उनके में ये नहीं चलता है, उनका वो मोटो ही नहीं है। उनको जानता हूं, बाकी ऐसे और भी 2-4 लोग होंगे जी, बिल्कुल होंगे। तो इस केस में जो है, इन बिटवीन द लाइंस उसका क्या था, जो मैंने समझा जिस तरह से केस को,
हो सकता है मैं गलत भी हूं, आप लोग मानना है नहीं मानना है डिपेंड करता है कि सबकी अपनी परसेप्शन है। तो मैंने जो सोचा था कि मेरे दिमाग में आया कि ये बच्चे को ये जॉब की बात पे कर रहा, बिजनेसमैन बनने की बात कर रहा है। मैंने इसलिए पूछा कि आप बनना क्या चाहते हो, तो बिजनेसमैन। तो बिजनेस में क्या होता है, अच्छा खासे पैसे होते हैं ना, इसमें लिमिटलेस होता है, कुछ भी आप कमा सकते हैं अपनी मेहनत के ऊपर। रिस्क भी होता है, दोनों बातें होती है, ठीक है। तो एंजाइटी फ्यूचर अबाउट और एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट एंड पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट डे। इन तीनों रूब्रिक में अभी किसी को डाउट है? हेलो, आप थोड़ा सा हाँ ना कीजिए यदि किसी को डाउट। हाँ जी सर डाउट बिल्कुल नहीं है सर। ये तो पक्का है ना। तो हमारे पास जो रेमेडी बच रहे, 10 रेमेडीज बच रही हैं आज के डेट में। मैंने जिस समय किया था उस समय शायद इतने में रेमेडी आ गई होगी या 1-2 रेमेडी बची होगी, ठीक है। तो हमारे पास है कैलीसल्फ है, आर्सेनिक है, डल्कामारा है, कैलीफॉस है, टेक्सस है, कैलकेरिया है, बैम्बूशा भी चल रही है साथ साथ में, है ना, ऑन्कोटी है, सोल है एंड टॉलीपेटस ट्रिसिनिटस। इतनी रेमेडी बच गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है ना, उसने क्या कहा कि नहीं तो मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, मैंने उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, जिंदगी डूब जाएगी। डेलूजन डूम्ड बीइंग। कोई जरूरी थोड़ी है कि पढ़ाई करने वाले ही सक्सेस होते हैं, पढ़ाई करके भी तो मिल सकता है ना। सो डेलूजन डूम्ड बीइंग। हमारे पास केवल 2 रेमेडी रह जाती है, आर्सेनिक एंड कैलीफॉस, ठीक है। इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए, और भी बहुत सारे एंट्रीज हैं इसके बाद। अब काम करने का मन नहीं कर रहा, काम पड़ा हुआ है, छोड़ दो यार, नहीं करना है, यही था ना उसका। इंडिफरेंस वर्क अवर्जन टू, लेजीनेस फिजिकल। एक बहुत अच्छा रूब्रिक है, देखिए आप, लेजीनेस फिजिकल मिला रूब्रिक। हमारे पास 3 रेमेडी रह गई, कैलीफॉस, कैलीसल्फ एंड कैलकेरिया। कैलीसल्फ किसने किसने बोला था? सर मैंने भी बोला था, एक गिरीश सर ने भी बोला था। मैंने बोला सर हमने भी बोला था। अच्छा, अब कैलीसल्फ में देखिए ईगो है या नहीं। कालीसल में ईगो तो है, सल्फ उसमें सल्फ एलिमेंट है ना, तो होनी तो चाहिए ईगो। हाँ, और कैलीफॉस में देखिए ईगो है या नहीं। अब कैलकेरिया में देखिए, कैलीसल में ईगो है, एक बार चेक कर लीजिएगा। नहीं है, इसमें तो नहीं, सिंथेसिस में तो नहीं है। कंप्लीट में देख लेता हूँ। हाँ, एक बार वहां देख लीजिए, ये दोनों मिलकर बहुत गड़बड़ करते हैं आपस में, लेकिन वहां भी नहीं मिलनी चाहिए। काली को गुस्सा बहुत आता है और उसको हमेशा कंपनी चाहिए, लेकिन काली ग्रुप में देखना पड़ेगा कितने इगोटिज्म वाले रेमेडी हैं काली से। सर कंप्लीट में भी नहीं है ईगो। ठीक है, अब आप इगोटिज्म में देखिए काली ग्रुप की कौन कौन सी रेमेडी हैं जिसमें ऐसा ईगो नहीं है। है उसमें, ईगोटिज्म में काली का नहीं है, काली ग्रुप नहीं है। काली ग्रुप नहीं है ना। हाँ सर, एक भी दवा नहीं है काली की। देख लीजिए, अच्छा से देख लिया आपने। कंप्लीट में तो सर नहीं, कंप्लीट आप एड्रेस पे देख लो, क्या ना हो। ग्रुप नहीं वहां है भी देख लीजिए, इकोटिज्म में। नहीं है ना। तो ये काली बच्चा कैसा, की कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, इगोटिज्म में काली ग्रुप है ही नहीं, अभी भी नहीं डाला हुआ है नहीं है ना। कंटेंट में खाली सल्फ है सर। ये, हाँ, काली सेल्फ कंटेंट है, श्योर है आप? में खाली सल्फ है। भी हो सकती है कि आपने कौन सी बताया ना रेपट यूज कर रहे क्लैरिटी ऑफ माइंड है उसमें। आपने शुरुआत में ही बताया था क्लैरिटी ऑफ माइंड फास्फोरस का गुण है, काली मिल के शायद काली फॉस हो सकती है। पता नहीं, आपने कहा, एक बार स्क्रीनशॉट डालिएगा जिसमें काली सेल्फ लिखा हुआ इगोटिज्म में। एड्रेस में है।
जहां तक मेरा ख्याल है नहीं है, किसी ने डाला होगा ईगोटिज्म तो। मना किया है सर, मना किया है सर। किसमें? अच्छा नहीं है ना। हाँ, नहीं है। तो इस बच्चे को कुछ नहीं, जैसा है एकदम सोबर बच्चा है। और एक रूब्रिक देखिए, बहुत डायरेक्ट रूब्रिक, मैंने शायद बताया भी था कि बहुत सीधा साधा, इतना सोबर बच्चा लगता है, इतना सुंदर बच्चा है ना। तो सोबरनेस एक्चुअली क्या है कि ये देखने से ही समझ में आएगी। अब बहुत सीधा, उसके बाल मांग से एकदम यहां से झाड़े हुए, जबकि आजकल सब आड़े तिरछे तरह तरह के सब फैशन वाले चलते हैं, कोई फैशन नहीं। तो एक रूब्रिक मैंने लिया था सोबरनेस, ये कैलिफॉस है। कैलिफॉस किसने बताया? जी हमने सर। हाँ, कांग्रेचुलेशन डॉक्टर श्रीवास्तव। सर मेरे बहुत यहाँ अच्छा सर क्वेश्चन है, वो बंदा तो मटीरियलिस्टिक है। हाँ हेलो सर बंदा मटीरियलिस्टिक है इतना, वो तो सोबर कैसे है? सोबर और मटेरियलिस्टिक क्यों? उसको अब सोबर तो उसका बिहेवियर है ना, उसके बातचीत करने का तरीका, उसका अपना प्रेजेंटेशन, वो देखो आप। उससे मटेरियलिस्टिक होना अलग बात है, लेकिन मटेरियलिस्टिक बंदे क्या सोबर नहीं होते? सर मुकेश अंबानी उसका देखो ना बात व्यवहार, देख के आपको लगेगा कि हाँ, ही इज अ वेरी सोबर गाय। हाँ, कभी उसको देख के लगता है उसको कोई ईगो वगैरह है? हमेशा मुस्कुराते रहता है। उसकी वाइफ को बहुत ज्यादा ईगो है, लेकिन वो बेचारा एकदम सीधा साधा। सोबर और माइल्डनेस में क्या डीडी होगा? माइल्डनेस अलग चीज है, सोबर अलग। हम माइल्ड हो सकते हैं लेकिन सोबर नहीं भी हो सकते हैं। सोबर का मतलब क्या होता है? सोबर में मतलब सर जैसे सोफिस्टिकेटेड टाइप के लोग जैसे होते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा ना कहीं एक्चुअली वो जब उसका वीडियो यदि होता कहीं मेरे पास, तो आपको समझ में आता। या कभी और कोई ऐसा मिला कोई बंदा जो उसमें सोबर रूब्रिक हो, उसका यदि वीडियो कर लो तब दिखेगा, तब समझ में आएगा ये। सिंपलिसिटी सर, सोबर मीन सिंपल। हाँ, एकदम सिंपल था ना। जैसे आजकल के बच्चों में क्या होता है, एकदम फैशन रहता है ना, मांग निकाल के थोड़ा हीरो जैसे दिखते हैं, थोड़ा एटीट्यूड रहता है एकदम। जैसे पहले के जमाने में, जैसे पहले के जमाने में जो होता ना, जो आज से 50 साल बैक के जो बच्चे होंगे, जिनकी उम्र अभी 60 हो चुकी होगी, और उस समय जो बच्चे होते थे ना, एक झापड़ लगाया तो सब ठीक है, सारा एटीट्यूड गायब हो जाता था, एकदम सीधे बच्चे की तरह बैठ जाते थे ऐसे। जी जी जी, वही सिंप्लिसिटी होगा सर। सोबर से मतलब कनेक्टेड हो रहा है ना, कनेक्ट हो रहा है, ये सिंप्लिसिटी को ही करते होंगे। जैसे बोलते हैं ना कि सोबर टाइप का लग रहा है बहुत। हाँ, ठीक है। तो एक्चुअली सोबर में ना इसका जिसमें जो है माने एटीट्यूड नहीं है, मैनर बहुत डिग्निफाइड जैसा लगेगा आपको, है ना, एक ग्रेविटी दिखेगी, बातचीत करने के तरीके में बोले आपको निकल जाएगा कितना अच्छा बच्चा है, निकल जाएगा, आप खुद समझ जाएंगे। जहां ऐसे निकले ना, अरे आज के जमाने में इतना अच्छा बच्चा, इतना सीधा बच्चा, इतना सोबर बच्चा, तो उसको देख के मेरे डायरेक्ट वही मेरे दिमाग में आया था। मैंने सीधे सोबर वहां देखा था कि हाँ, सोबरनेस रूब्रिक है, उसमें रेमेडी पड़ी हुई थी। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मेडिसिन तो आई गई, ठीक है। और जो रूब्रिक इस केस में जो थे, एक और रूब्रिक है काम करने में, जैसे धीरे धीरे काम नहीं हो पा रहा, बहुत धीरे धीरे करना पड़ता है, स्लोनेस वर्किंग एंड बेड डिजायर टू रिमेन, चुपचाप पड़े रहने का मन करता है। तो कैलिसेल बहुत क्लोज चल रही थी, पोडोफाइलम बहुत क्लोज चल रही थी इस केस में, ठीक है। और तो एक्चुअली क्या होता है ना, इसके बैकग्राउंड में हम लोग रेट्रो देखते हैं। रेट्रो क्या है? इसका केस बस इसी रूब्रिक से निकला था। अब थोड़ा सा स्टडी थोड़ा समझ लेते हैं कैलिफॉस को, बाकी डिटेल में बाद में होगा, कभी करेंगे इसको। तो इसको क्या है ना, डेल्यूजन फिगर सीज, फिगर दिखता है, 1 करोड़ का है, 2 करोड़ का है, लाख में है, 1000 में है ना। और वही बंदा जिसको इतना ज्यादा है और अभी इतनी कमजोरी लग रही है, इतनी ज्यादा वीकनेस लग रही है ना, कि बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस
he become indifferent to everything, indifferent to household affairs, है ना, indifferent desire nor action of the will, has no desire, कुछ नहीं उसको इच्छा करती है, प्लेजर से इंडिफरेंस हो गया, दिन रात पड़ा रहता है, बेड डिजायर टू रिमेन, है ना, नेग्लेक्टिंग एवरीथिंग, सब कुछ को नेग्लेक्ट कर रहा है। जिस पढ़ाई को लेके वो बहुत ज्यादा चिंतित रहता था, उसको भी पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा, छोड़ दो यार, आज नहीं कल कर लेंगे, पोस्टपोन कर रहा है। जबकि ये बंदा हरिडनेस में पड़ा हुआ है, हरी इन ऑक्यूपेशन, फटाफट काम कर रहा है। क्लैरिटी ऑफ माइंड इसको देखिए, ट्रैंक्विलिटी में भी है, जो है सब मिल रहा है ना, ठीक है, कोई ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये बंदा इगोटिज्म में बिल्कुल भी नहीं है, पूरी काली ग्रुप ही इगोटिज्म में नहीं है, है ना। तो सर ये रीडिंग डिफिकल्ट में भी है कालीफास, अगर सिंपल डालते हैं ना तो उसमें भी है। हाँ, इसीलिए कैलिफॉस देखिए ना, मेमोरी जो बच्चों जब पढ़ते हैं ना, टायर्ड हो जाते हैं, ब्रेन फैग, तो उसमें कैलिफॉस देते हैं उसको, ठीक है, कैलिफॉस बहुत अच्छा काम करती है। तो हमारे जो मैं हॉस्टल में पढ़ता था ना जिस समय, तो वहां तो सीए वगैरह बहुत सारे लोग रहते थे, तो वो लोग ब्रेनोलिया मंगा के खाते, मैंने भी खाया है, कुछ नहीं होता, फेंक दिया मैंने भी। फिर कैलिफॉस लेके आया, अब बहुत अच्छा हुआ, और पूरा हॉस्टल कैलिफॉस खाने लगा। ब्रेनोलिया का जो दुकानदार था ना, खूब बिकता था एग्जाम में ब्रेनोलिया, उसकी दुकान ही बंद हो गई ब्रेनोलिया की। सारे सब आ जाते थे मेरे पास, कैलिफॉस खाते थे मंगा के। मेरा भी बिजनेस चल गया थोड़ा सा। फर्स्ट ईयर से ही वहां पर फाइनल के लड़के भी थे ना, तो वो लोग भी आके पूछ के मेरे से दवाई लेते थे। वो लोग बोलते भी थे, यार फर्स्ट में एडमिशन लिया और सीधे डॉक्टरी चालू कर दिया। तो चूंकि बैकग्राउंड था, मेरा पिताजी मेरे डॉक्टर हैं, तो एकदम सिंगल मेडिसिन देने वाले, तो मैं भी इम्प्रेस हो गया था डबल मेडिसिन ट्रिपल मेडिसिन से। वो होता है नया नया जब सीखते हैं, तो कि वहां देते थे, मदर टिंचर भी देते थे, ये सब मालूम ही नहीं था मुझे। तो कैलिफॉस भी बहुत करीब चल रहा था, पोडोफाइलम बहुत करीब चल रहा था, डल्कामारा भी बहुत करीब चल रहा था, ये सारे रेमेडी बहुत करीब थे। लेकिन उसने जो बताया ना कि आई विल नॉट गेट एडमिशन इन द गुड कॉलेज एंड देयरफॉर नो गुड जॉब मींस लेस सैलरी, तो यहां से मैंने सीधे पूछा कि बनना क्या चाहते हो, तो बन बिजनेसमैन। तो यहां से मेरी एंजाइटी मनी मैटर्स क्लियर हो गई थी। डल्कामारा भी बहुत ज्यादा क्लोज चलते हैं, लेकिन डल्कामारा इतना माइल्ड नहीं होता, डिक्टेटोरियल नेचर का भी होता है। डल्कामारा को भी एंजाइटी, चिल्ड्रन अबाउट या फैमिली, एक्चुअली फैमिली के लिए बहुत ज्यादा केयर करता है, उसको उसकी चिंता रहती है कि बच्चे अच्छे बन जाए, फैमिली अच्छी चले। बिजनेस से ज्यादा उसकी चिंता फैमिली के लिए ज्यादा होता है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होता है। हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा हम्बल नेचर का होता है ना। इसको भी सबके साथ इक्वलिटी के बराबर व्यवहार चाहिए, लेकिन ये भी ऑफेंडेड हो जाता है यदि भयंकर गुस्सा आता है। इवन सामान वगैरह भी स्टैप की तरह सामान भी फेंक देता है, जहां कभी कभी स्टैप जैसा लग रहा है, गुस्सा आता है, फेंक फाक देता है ना, और स्टैप काम नहीं करता है, तो थोड़ा सा हाइड्रोजन एक बार देख लीजिएगा कि कहीं मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है क्रिटिसिज्म वगैरह को लेकर। पोडोफाइलम बहुत ज्यादा क्लोज चल रहा था, वेरी वेरी क्लोज, और रियल में यहीं से डीडी करना था। पोडोफाइलम और कैलिसल्फी दोनों रेमेडी बहुत करीब चल रहे थे, है ना। तो पोडोफाइलम को क्या लगता है ना, जैसे कोई बीमारी बहुत लंबी चल रही है, तो उसके दिमाग में अब चलने लगता है, यार मुझे कोई ऐसी बीमारी होगी जो कभी ठीक नहीं होगी, क्योंकि दवाइयां तो काम नहीं कर रही है, बीमारी इतने दिन हो गई। जबकि इसको 6-7 महीने के बाद में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है, उसका टेंशन है उसका स्टडी को लेकर टेंशन है, जहां ये पोडोफाइलम से अलग हो जाते हैं। पोडोफाइलम जो है दूसरे के लिए ज्यादा करना चाहती है, अपने लिए कंटेंट में रहती है ना, बहुत माइल्ड नेचर की होती है, यील्डिंग नेचर की होती है, अफेक्शनेट होती है, अफेबल होती है। वो भी लग रहा था बहुत ज्यादा अफेक्शनेट बच्चा है, बहुत ज्यादा शांत बच्चा है, तो इसलिए पोडोफाइलम बहुत ज्यादा क्लोज लग रही थी, है ना। और यदि हम फूड पॉइजनिंग को देखते हैं ना, तो वहां भी पोडोफाइलम है, लेकिन यूजुअली पोडोफाइलम अपने सराउंडिंग को लेकर बहुत ज्यादा डिसकंटेंटेड होता है। वो चाहता है सब अच्छा हो, ये ठीक से नहीं हो रहा है, वो ठीक से नहीं हो रहा है, ये बंदा ऐसा है, वो बहुत ज्यादा, ये कभी कंटेंट में नहीं रहता, शांत नहीं रहता। लेकिन दूसरी बात है कि दूसरे यील्ड भी करता है नेचर में, चलो ठीक है कर लेते हैं, तो हर तरह के फेस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कैलिफॉस इस केस में बहुत ज्यादा, कैलिफॉस पोडोफाइलम बहुत ज्यादा
क्लोज चल रहा था। कैलिसल भी बहुत ज्यादा क्लोज था। यदि हम पोस्टपोनिंग और माइल्डनेस देखा जाए तो कैलिसल में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन कैलिसल जो है ना, जो कट रहा था, जो बहुत ज्यादा कट रहा था, एंजाइटी मनी मैटर्स भी था, एंजाइटी फ्यूचर भी था, फिजिकल लेजीनेस भी है ना, पोस्टपोनिंग में भी पड़ा हुआ है, माइल्डनेस में भी पड़ा हुआ है, बहुत सारे हैं, इंडिफरेंस में वो भी जाता है, बहुत जगह चल रहा था। लेकिन स्लोनेस वर्क में आपको कैलिसल नहीं है। फिर कैलिसल थोड़ी सी हॉट रेमेडी है, ठीक है। कैलिसल भी जैसे कैलिफॉस की तरह कैलिफॉस में फिर हार्ड हार्टेड भी होता है। ये हमेशा आप माइल्ड समझ के मत बैठेगा, ये इसका एक सेड है। कैलिफॉस बहुत क्रूएल भी होता है, बहुत ज्यादा क्रूएल्टी में भी आपको मिलेगी। कैलिफॉस की क्रूएल्टी देखने लायक होती है, आप सोच भी नहीं सकते कि कहाँ तो इतना माइल्ड है और कहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूएल्टी वाली भी सेड आएगी कैलिफॉस की, ठीक है। तो हमें वो सेड भी याद रखना है, हमें कभी भी हर पहलू को हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने आज माइल्ड थोड़ा बताया, तो हमेशा यही सोचेंगे कि माइल्ड ही मिलेगी, ऐसा नहीं है। कैलिफॉस की क्रूएल्टी अपने बच्चों को लेकर बहुत भयानक होती है, अपनी फैमिली के प्रति मैंने बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। दे बिकम इनह्यूमन एट दैट प्लेस। डॉगमेटिक होते हैं ना ये। हाँ, पेडेंट होते हैं, न्यू आइडिया वर्जन 2 में जो इनको अपना लगता है वही करना है, तो दे आर द पेडेंट। ये पेडेंट की एक रेमेडी है कैलिफॉस, वन ऑफ द रेमेडी। हाँ, जो एकदम रूल्स रेगुलेशन को ही मान के चलना है, जो बनाया गया है वैसे ही चलना है। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल लाइक रूटा। तो वहां भी कैलिफॉस है। तो हर रेमेडी के बहुत सारे सेट्स होते हैं, तो ये एक सेट था। इसके अदर सेट भी मिलेंगे आपको अलग अलग केसेस में, केसेस के हिसाब से। जब हम केसेस के द्वारा पढ़ते हैं तो अलग अलग सेट हमें समझ में आते हैं। तो बस इतना ही आज। फाल्कोपी थोड़ा बताना, फाल्कोपी का कैसे कर सकते हैं? फाल्कोपी को क्या है ना, उसको डिजायर होती है बहुत ऊंचा उड़ने की, लेकिन उसके पर कतर दिए गए होते हैं। फाल्कोपी का क्या होता है ना कि आप देखोगे ऐसे बंदे मिलेंगे जो बहुत तेज हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कुछ कर सकते हैं, कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका आईपीआर उसे उड़ने नहीं देता, उसकी बात नहीं मानता। तो वो क्या होता है, घुट जाता है। फाल्कोपी का देखेंगे आप, हमेशा एक घुटा हुआ जीवन बहुत ज्यादा मिलेगा, जिसको बहुत ऊपर जाने की चाह थी, लेकिन उसके आईपीआर ने उसे अलाउ नहीं किया। मिला है, एक बार मैंने केस बताया था ना, एक केस में फाल्कोपी का। तो ये बहुत ज्यादा मिलता है कि फाल्कोपी की जो कंडीशन होती है ना, कि उसकी जो एलिमेंट से शुरू होती है डोमिनेशन में, मैंने बहुत ज्यादा डोमिनेशन रहता है। और कौन करता है सबसे ज्यादा? उसके अपने पेरेंट्स करते हैं। तो मेरे पास एक केस आया था, उसको फैल्को से मैंने आईबीएस की प्रॉब्लम, सेकेंड डे उसने रोटी खाना शुरू कर दिया, उसका दारू पीना छूट गया। वाइफ से अब कई सालों से बात नहीं करता था, केवल अपनी बेटी से थोड़ा सा प्यार से बात करता था। बाप को तो चिढ़ जाता था देखकर, क्योंकि बाप ने उसकी लाइफ स्पॉइल कर दी थी। जबकि उसने बिजनेस को खड़ा किया अपने दम पर अकेले। जब खड़ा हो गया तो उसका एक दूसरा चाचा का भाई लंदन से पढ़ के आ गया, तो बस वो ऊपर चढ़ गया। और ये बात उसको बहुत खलती थी, फिर इसको तरह तरह से धिक्कारा जाता था। धीरे धीरे इसका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो फाल्को के क्या होता है, फाल्कोन बनता भी है ऐसी बात से जिसको पिंजड़े में रखा जाता है, उसके फेदर से बनता है। तो उसी की फील आती है कि दे आर इन द केज, दे हैव बीन डोमिनेटेड, दे हैव नॉट अलाउड टू फ्लाई। उसकी अपनी इच्छा के अनुसार उसे काम नहीं होने देने देते, तो वो इंटरेस्ट ही छोड़ दिया था। उसके लव्ड वन की डेथ हो जाती है, उसके फादर की डेथ हो जाती है ना, कि नहीं ये हमारे लिए तो मर गए हैं, होके भी नहीं है, इन्होंने मुझे दिया क्या, मुझे अपने हिसाब से काम नहीं करने देते, खुद भी गलत करते हैं और ऊपर से चार बात मुझे सुना देते हैं। अक्सर ह्यूमिलिएशन बहुत ज्यादा होता है।
मॉडिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है इसके केस में नॉर्मली। अदरवाइज भी केसेस हमको सिंपल केसेस भी मिल सकते हैं, तो लेकिन ये एक अलग फील होती है जिसमें मॉडिफिकेशन ह्यूमिलिएशन बहुत ज्यादा होता है इसके लाइफ में, और बात पर ताने सुनने को मिलते हैं। तो इस कारण से कई बार ये शराब शबाब में डूब जाता है, छोड़ देता है, नहीं करना है। तो इस तरह की फील आएगी, बहुत सारे फील आ सकते हैं अलग अलग केसेस में। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये? सर ये आईपीआर की बात मान लेता है ना, ये फाल्को पी जो होते हैं? आईपीआर मानता नहीं है जी। आईपीआर उसकी सुनता नहीं है, उसको डोमिनेट कर देता है। जी। तो मानना तो तब हो ना, आप दिल से मानो, मजबूरी में मानना तो उपाय नहीं है ना। जी जी जी। अब आप बाइक लेके जा रहे हो, जबरदस्ती आपका चालान काटने पे उतर ही आए, नहीं जी आपके तो सूज के लेस जो है, वो सूज जो आपने पहने हैं ये लेस वाले नहीं है, हम तो फाइन करेंगे। तो आप क्या करोगे? पंगा तो नहीं ले सकते। मजबूरी में। मार्शल होगा तो दो चार थापड़ लगा के वहीं पर फिर पुलिस केस वगैरह बन जाएगा, जी जी। है ना। लेकिन जो नहीं कर सकेगा वो क्या करेगा? मजबूरी में, चलो भाई ठीक है, तो आप उस फाइन को एक्सेप्ट तो नहीं कर रहे हो, लेकिन मजबूरी में देना पड़ रहा है। ये इसके साथ है ना, इसको इतना ज्यादा बाइंड कर दिया जाता है कि ये मानना तो नहीं चाहता है। जी जी। इसीलिए देखिएगा ना, उसके रेस्पिरेशन जो है ना डिफिकल्ट हो जाते हैं, सांस नहीं ले पाता, इंस्पिरेशन डिफिकल्ट हो जाते हैं। डोमिनेशन की वजह से ना। हाँ, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट, ड्राइविंग वाइल, बिकॉज ऑफ द डोमिनेशन। डिस्करेज, रेजिग्नेशन में चला जाता है, हार जाता है, बहुत कोशिश करता है उड़ने की, लेकिन जब उसे नहीं उड़ने दिया जाता है तो रिजाइन कर देता है, डिस्करेज हो जाता है। फाल्को पी ऐसा बंदा है, लेकिन उसे चांस मिले तो वो फर्श से अर्श तक जाने की हिम्मत रखता है। लेकिन आईपीआर यदि गलत हो तो क्या कर सकते हैं? नथिंग टू डू। जी जी जी। थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन है? सर इस केस में डिल्यूजन डूम्ड बीइंग एक्सप्लेन करेंगे? कुछ वो समझ में नहीं आया इसको। नहीं, इस केस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसकी फील है। इस केस में भी आप देखो ना, आ ही जाएगी। इसमें क्या बताया ना कि मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अरे यार, एक बात समझो आप, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग क्या बहुत आगे नहीं बढ़े हैं? मेरे साथ में ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फिसड्डी थे पढ़ाई में, मैंने किसी तरह से पास भी नहीं हो पाते थे, ठीक से ग्रेस दे के पास करना पड़ता था, और आज वो बहुत सफल बिजनेसमैन है, उसका सोशल स्टेटस बहुत बढ़िया है, नेता बन गए हैं, लायंस क्लब के मेंबर बन गए हैं। तो पढ़ाई से ही सारा कुछ हासिल हो जाए कोई जरूरी तो नहीं है ना। पढ़े लिखे लोग ही जो है बहुत अच्छा चला सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। अनपढ़ लोगों को देखा है कि बहुत अच्छा गाइड कर बिजनेस चलाते हैं। ऐसे आपको देखने को मिलेगा ना, एक पियोन था, तो चूंकि उसके 10 क्लास थी, वो अचानक रूल्स बना इतना पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो नहीं तो उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर उसने बिजनेस करना शुरू किया, कुछ ना कुछ काम, थोड़ा छोटा मोटा काम करके, और बहुत बड़े एम्पायर का मालिक बना। तो एक बार किसी बैंक मैनेजर बोला कि देखिए इस तरह की जो है ये प्रपोजल आया है, इसमें ऐसे ऐसे लोन मिलता है, तो बहुत अच्छा है, आप इसे कर लीजिए। तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? बोला आप पढ़ लीजिए। तो बोले मुझे पढ़ना ही नहीं आता है। तो बैंक का मैनेजर जो है वो हक्का बक्का है, क्या बोल रहे हैं आप, और ये रियल घटना है, आप पढ़े लिखे नहीं है। तो बोले यदि पढ़ा लिखा होता तो मैं कहीं स्कूल का पियोन होता, अनपढ़ था इसलिए आज इतने बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो अनपढ़ होते हुए भी उसने इतना बड़ा एम्पायर संभाल रखा है बिजनेस का। तो दिस इज नॉट ए रियलिटी कि आप ज्यादा पढ़ लिख जाओगे तभी आप अच्छे बन सकते हो, अच्छे सक्सेस हो सकते हो। उसका आपका अपना आईक्यू बहुत काम करता है, आपकी मेहनत काम करती है, बहुत सारी चीजें लगती हैं, कुछ तकदीर लगता है। ठीक है, तो अब उसके दिमाग में क्या है ना कि यदि वो नहीं पढ़ाई किया तो उसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगा, है ना। दिस इज सिंपल। क्लियर है या इसमें डाउट है अभी? यस सर, क्लियर है। और कुछ?
सरेंगर नेवर एंग्री और एम्बिशन इंक्रीज में स्टेफी भी है ना सर, उससे कैसे डीडी करेंगे? देखिए, एंगर नेवर एंग्री, उसको गुस्सा आता ही नहीं है, कोई कुछ भी बोल रही है अलग बात है। और एंगर नेवर एंग्री जो है ना, ये स्टेप का अलग फिलहाल के लिए रेमेडी है शायद उसमें, मोस्ट प्रॉब्ली, जहां तक मुझे याद है। हाँ अभी जी, कुछ और आगे होगे तो नहीं पता, एलो नहीं है वरना सर, सिंगल अकेली है ना। रेमेडी। हाँ जी, हाँ, तो उसकी अलग फील है, वो कभी और समझेंगे। उसको ओके समझने सर, के लिए पूरा हमें स्टेफी का पूरा एक जर्नी करनी पड़ेगी। नहीं ओके तो सर। स्टेफी का आप देखिए ना, उसमें अकेली पड़ी हुई है, जबकि स्टेफी का गुस्सा देख लीजिए, तोड़ फोड़ करने वाला जो है, सामान फेंक देना, क्योंकि गुस्सा जब निकाल नहीं पाता है ना स्टेफी, तो सामान पर निकालता है। इसीलिए हाइड्रोजन बहुत क्लोज चल रही थे, हाइड्रोजन स्टेफी के बहुत पास पास जाती है। लेकिन नेवर एंग्री वाला सेट बिल्कुल अलग है, उसके साथ दूसरे तरह के रुबिक्स कवर होंगे। वो इस हिसाब से लेंगे तो आप हमेशा मिसगाइड हो जाएंगे। ऐसे कभी नहीं लेना है सिंगल रेमेडी रुब्रिक को। बहुत से लोग गुस्सा नहीं होते हैं, और मैं दे दे के फंसा हूं इसलिए बोल रहा हूं। मैंने दिया, काम नहीं, तो मुझे लगा यार क्यों डाला हुआ इसमें, अकेली रेमेडी डाला है, काम तो होता नहीं है। तो जिससे मेरी समझ नहीं थी, बाद में समझा। और इसको समझना है तो सबसे ज्यादा महेश चंद्रा सर समझा सकते हैं, उनसे बेहतर शायद कोई नहीं समझा सके। इस तरह के जितने भी टेढ़े मेढ़े रुब्रिक है ना, वो तो इनिशियल स्टेज में स्टेफी सोशल इमेज की कंसर्न रहती है, इसलिए तो वो फियर को अपने सप्रेस करता रहता है। और एक टाइम के बाद वो फिर मतलब जैसे बस्ट हो वॉल्केनो की जाता है तरह ना। होता है। यस, जी 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 लोगों को लगता है कि यार ये है, लेकिन वो सप्रेस्ड होता रहता है, सप्रेस्ड होता रहता है, या फिर कभी सामान पे निकलता है। जी जी। तो एंड करते हैं अभी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। आज मुझे आप लोगों से बहुत अच्छा सीखने को मिला, कि जो क्वेश्चन जब राइज होते हैं ना, तो हमें उसका डीडी करना है, क्यों होगा क्यों नहीं होगा। और डॉक्टर तुषार, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके हिसाब से एक रुब्रिक बहुत अच्छी क्लियर हुई। थैंक यू। इसलिए क्या है ना, सभी पार्टिसिपेट करेंगे तो गलत सही नहीं, सबके गलत होते हैं। मुझे यदि आप लोगों के केसेस दे दिए जाए, मैं भी गलत हो जाऊंगा। कहाँ गलत होगा ये हमें सीखना है, कैसे उस गलती से बचने की सीखना है। जितना हम सीखते जाएंगे, धीरे धीरे प्रिसाइज होते जाएंगे। ठीक है। और मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ हैं, इस तरह से ग्रुप से जुड़ने के बाद सबको थोड़ा ना कुछ फायदा जरूर क्लिनिक में हुआ है या नहीं? हाँ सर। ऐसा हो रहा है ना? तो आप लोग सब मानते हैं ना, सब पैसे कमाने के लिए यहाँ पर अभी तक बैठे हुए हैं। मैं तो ज्यादा नॉलेज इनकम बैठा हूँ। आप नॉलेज के लिए बैठे हैं, बिल्कुल सही है। हो गया म्यूट। म्यूट हो सर। ना, पैसे कमाने के लिए जो है ना, इसके पीछे जो अच्छा नॉलेज लेने के पीछे क्या होता है, मकसद तो ये होता है ना, ज्यादा पेशेंट आएंगे, ज्यादा इनकम होगी। तो कुछ चीजें हिडन रहती हैं, उसे भी हमें समझना चाहिए। हमेशा डायरेक्ट पता नहीं, हो सकता है मैं उनको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूँ, वो उनकी अपनी समझ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इन बिटवीन लाइन भी पढ़ना आना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो है पेशेंट नहीं बोलता है, वो हमें समझना पड़ता है। वो कई बार भटकाता है, यदि हम इसको नहीं समझेंगे ना और पेशेंट के सेप पर जाएंगे, तो कई बार हम भटक जाएंगे। तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन भी देखना है कि वो जो बोल रहा है और जो कर रहा है वो मैच कर रहे है कि नहीं। तो बहुत सारी चीजों को एक केस में देखना पड़ता है। ठीक है, तो शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट।